آج سے 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ اسی وجہ سے ہی امام احمد بن حنبل اپنی اسی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی بن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ اب دوستو، حضرت جناب عمر ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ کیوں مانگا کرتے تھے کہ جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت امام علی بن ابی طالب موجود نہ ہوں؟ تو دوستو، حضرت عمر کی یہ بات کہنے کی وجہ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت امام سبت ابن جوزی اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بعد جب مسلمانوں نے حضرت عمر کو اپنا دوسرا خلیفہ مقرر کیا تو خلیفہ مقرر ہونے کے بعد روم کے بادشاہ نے زمین و آسمان میں چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے ایک شخص کو مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف بھیجا۔ جب یہ شخص کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عمر کے دربار میں پہنچا تو دربار میں پہنچتے ہی یہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں بادشاہ روم کی طرف سے آپ کے پاس زمین و آسمان میں موجود چھپے ہوئے کچھ رازوں کے بارے میں سوالات کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی نے وہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر تو آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو پھر میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو میں بادشاہ روم کو یہ خبر پہنچا دوں گا کہ یقیناً مسلمانوں کے نبی ہی وہ آخری نبی ہیں کہ جس آخری نبی کا ذکر ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر آپ نے مجھے میرے ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیا تو پھر یقیناً آپ کا نبی ایک جھوٹا نبی ہے۔ تو حضرت جناب عمر نے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جان لو کہ ہمارے ہی نبی وہ آخری نبی ہے کہ جس آخری نبی کا ذکر تورات، زبور اور انجیل جیسی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر زمین پہ وہ ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر آج تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پڑی؟ لہٰذا آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ اس زمین پہ ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس زمین پہ وہ ایسا کون سا درخت ہے کہ جو درخت بغیر پانی کے پیدا ہوا؟ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی کوئی جسم ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا صرف اور صرف منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے اور نہ ہی کوئی پاؤں ہیں، لیکن ہاتھ اور پاؤں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس زمین پہ ہر وقت صرف چلتی ہی رہتی ہے؟ اسی طرح میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ لہٰذا آپ مجھے اس درخت کے بارے میں بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے آپ مسلمانوں کی اس بات پر ذرا برابر بھی کوئی یقین نہیں ہے۔ لہٰذا پھر بھی اگر آپ مسلمانوں کا اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، لیکن پھر بھی وہ پیشاب و پخانہ نہ کریں گے، تو پھر آپ مجھے اس بات کی کوئی ایسی عقل مندانہ دلیل دیں کہ آپ کی اس دلیل کو میری یہ عقل آسانی سے تسلیم کر لے۔ اور اسی طرح اب آخر میں میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آپ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے تو اس جنت کے دروازے بھی ہیں،
तो अगर आप मुसलमानों की जन्नत के दरवाजे भी हैं तो फिर आप मुझे जन्नत के उन दरवाजों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताएं। दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत इमाम सिब्त इब्न जौजी आज से 800 साल पहले अपनी किताब तज़किरतुल हवास में ये लिखते हैं कि जैसे ही उस शख्स ने हजरत उमर से ये 7 सवाल किए तो हजरत उमर ने दरबार में मौजूद तमाम सहाबाए कराम को ये हुक्म दिया कि वो फौरन इस शख्स को इसके इन 7 सवालों के सही सही जवाब बताएं। लेकिन काफी देर तक इन सवालों के जवाब सोचने के बावजूद भी दरबार में मौजूद तमाम जलीलुल कद्र सहाबाए कराम इस शख्स को इसके किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब इस शख्स ने ये देखा कि मुसलमानों में से तो किसी एक ने भी इसे इसके किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के खलीफा, तुम मुसलमानों में से तो कोई एक भी मुझे मेरे किसी एक भी सवाल का जवाब ही नहीं दे पा रहा, लिहाजा तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हारे नबी ने आखिरी नबी होने का झूठा दावा किया था? क्योंकि हमारे नबी और पैगंबरों ने हमें आखिरी नबी की पहचान करने के लिए हमें ये कुछ सवालात बताए थे और हमें ये कहा था कि इन सवालों के सही सही जवाब या तो खुद वो आखिरी नबी बता सकता है या फिर वो कि जिसे खुद आखिरी नबी ने इल्म अता किया हो। लिहाजा ऐ मुसलमानों के खलीफा, तुम में से वो ऐसा कौन है कि जो तुम्हारे नबी के इल्म का वारिस हो? बस जैसे ही सहाबाए कराम ने इस शख्स की ये बात सुनी तो सहाबाए कराम ने फौरन इस शख्स को हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के पास भेजा। हजरत अली के पास पहुंचते ही इस शख्स ने आपको अपना सारा वाकया सुनाया और फिर जिन सवालों के जवाब इसने हजरत उमर से पूछे थे तो बिल्कुल उन्हीं सवालों के ही जवाब इस शख्स ने अब हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से पूछे। इस शख्स के इन सवालों पर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम्हारा पहला सवाल ये है कि आखिर ज़मीन पे वो ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी? तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि वो जगह के जहाँ पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी तो वो जगह समंदर का वो हिस्सा है कि जिस हिस्से से अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुजारा था। अल्लाह ने हजरत मूसा को ये हुक्म दिया कि ऐ मूसा, मार अपना असा समंदर पर। जैसे ही मूसा ने समंदर पर अपना असा मारा तो समंदर फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत मूसा की कौम फिरऔन से बचने के लिए समंदर के उस हिस्से से गुजरने लगी। जब हजरत मूसा की ये कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर रही थी तो समंदर के उस हिस्से पर पहली मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी। बस फिर जब हजरत मूसा की ये कौम समंदर के उस हिस्से से गुजर गई तो वहां से गुजरने के बाद समंदर आपस में मिल गया और ऐ बंदाए खुदा, उस दिन से लेकर आज तक समंदर के उस हिस्से पर दोबारा फिर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा जान लो कि वो जगह के जहां पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी तो वो जगह समंदर का यही हिस्सा है। दोस्तों, याद रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का समंदर के इस हिस्से से गुजरने का ये वाकया कुरान में सूरे अश-शौरा की आयत नंबर 60 से 66 में मौजूद है। इसी तरह तुम्हारा दूसरा सवाल ये है कि इस जमीन पे तो हर दरख्त पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ था? तो ऐ बंदाए खुदा, जान लो कि वो दरख्त के जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ था तो वो दरख्त अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से एक लम्हे में उगा कर पैदा किया था। जब अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मछली के पेट में रहने के बाद बाहर निकले तो मछली के पेट में रहने की वजह से आपके जिस्म का सारा गोश्त गल चुका था और जिस्म के इसी दर्द और तकलीफ की वजह से आप रो रो कर अल्लाह से सेहत याबी की दुआ मांगने लगे। तो फिर अल्लाह ने आपकी इस दुआ पर फौरन एक ही लम्हे में मौजिजा के तौर पर कद्दू की बेल के एक दरख्त को जमीन से उगा कर पैदा कर दिया, जिसके फलों को खाकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा सेहतयाब हो गए। लिहाजा ऐ बंदाए खुदा, वो दरख्त के जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ था तो वो यही दरख्त है कि जो दरख्त अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से एक लम्हे में उगा कर पैदा किया था।
दोस्तों याद रहे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस दरख्त का जिक्र कुरान में सूरे अस-सफ़ात की आयत नंबर 139 से लेकर 148 में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इसी तरह तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके ना हाथ है, ना पाँव है और ना ही कोई जिस्म है, लेकिन उसका सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मुंह है। तो ए बंदाए खुदा, फिर जान लो कि वो चीज के जिसका सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ मुंह है, तो वो दोज़ख की आग है, क्योंकि दोज़ख की ये आग हर चीज को खा जाती है और दोज़ख की ये आग इंसान को इस तरह से खाएगी कि जैसे भूखा जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ के खाता है। दोस्तों इसी वजह से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुरान में सूरे अल फुरकान की आयत नंबर 12 में ये इरशाद फरमाता है कि और जब दोज़ख की आग इन लोगों को दूर से देखेगी तो ये लोग दोज़ख की आग का जोश मार मार के चिंगाड़ ना सुनेंगे। बस ए बंदाए खुदा, अल्लाह के हाँ वो कामयाब है कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल का इकरार किया, और वो हमेशा हमेशा के लिए नाकाम है कि जिसने अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल का इनकार किया। इसी तरह तुम्हारा चौथा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज है कि जो जमीन पे हर वक्त सिर्फ चलती ही रहती है। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि वो चीज के जो हर वक्त इस जमीन पे सिर्फ चलती ही रहती है, तो वो चीज पानी है, क्योंकि जब से अल्लाह ने पानी को इस जमीन पे उतारा है तो तभी से लेकर आज तक ये पानी इस जमीन पर हमेशा से सिर्फ चलता ही रहा है। और अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए इस पानी में ये सीख रखी है कि जिस तरह ये पानी इस जमीन पे चलता है, तो इसके चलने की वजह से अल्लाह खुद ब खुद जमीन में इसके लिए रास्ते बनाता जाता है। तो ए इंसान, तू भी सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते पर चल कर तो देख, यकीनन अल्लाह तेरे लिए भी खुद ब खुद रास्ते बनाएगा। और तू जो इस दुनिया में लाचारी और बेबसी के आलम में रहता है, तो जिस तरह अल्लाह पानी के लिए रास्ते बनाकर उसके लिए आसानियां पैदा करता है, तो यकीनन अल्लाह तेरे लिए भी आसानियां पैदा करेगा। इसी तरह तुम्हारा पांचवा सवाल ये है कि वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि अगर कोई इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक उस दरख्त के साये के नीचे चलता रहे तो भी उस दरख्त का साया कभी खत्म ना होगा। तो ए बंदाए खुदा, फिर अब जान लो कि वो दरख्त शजराए तूबा है। शजराए तूबा जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है, और ये दरख्त इतना बड़ा दरख्त है कि इस दरख्त की शाखें और टहनियां जन्नत में मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। इस दरख्त के नीचे अल्लाह ने मुश्क, जाफरान और अंबर के बड़े बड़े पहाड़ बना रखे हैं। ऐ बंदाए खुदा, जन्नत के इस इतने बड़े दरख्त की एक मिसाल हमारी इस दुनिया में सूरज है, क्योंकि सूरज की रोशनी और किरणें हमारी इस जमीन पे मौजूद हर घर तक पहुंचती हैं। इसी तरह अगर अल्लाह इस चीज पे कादिर है कि वो हमारी इस दुनिया में इतने बड़े सूरज को बना सकता है, तो फिर यकीनन वो अल्लाह इस चीज पे भी कादिर है कि वो जन्नत में एक बहुत बड़ा दरख्त भी बना सकता है। दोस्तों याद रहे कि शजरा-ए तूबा का जिक्र कुरान में सूरे अर्राद की आयत नंबर 29 में कुछ इस तरह से मौजूद है। अल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति तूबा लहुम व हुस्नु माआब। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे तो इनके लिए जन्नत में तूबा है, और यकीनन आखिरत में भी इनका एक अच्छा अंजाम है। दोस्तों याद रहे कुरान की इसी आयत की तफसीर में आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई तफासीर की कई किताबें, जैसे कि तफसीर इब्ने अब्बास, तफसीर अल कुम्मी और इसके अलावा और भी बहुत सी तफासीर की किताबों में यही कहा गया है कि यहाँ पर तूबा से मुराद जन्नत का दरख्त शजरा-ए तूबा है। इसी तरह तुम्हारा छठा सवाल ये है कि इस्लाम ये कहता है कि जन्नत में लोग खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन खाने और पीने के बावजूद भी वो पेशाबो पहाना ना करेंगे। तुम कहते हो कि भला ये कैसे मुमकिन है? तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि यकीनन जन्नत में लोग खाएंगे भी पिएंगे भी, लेकिन खाने और पीने के बावजूद भी वो पेशाबो पहाना ना करेंगे। तो इसकी मिसाल हमारी इस दुनिया में ऐसे ही है कि जैसे हर बच्चा 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में खुराक की नाली से खाता और पीता रहता है,
لیکن ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کھانے اور پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب و پہانا نہیں کرتا. ہاں بس پھر اب آخر میں حضرت امام علی بن ابی طالب نے روم کے بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس شخص سے یہ فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب آخر میں تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو پھر تمہیں جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتایا جائے. تو اے بندہ خدا، پھر اب جان لو کہ جنت کے دروازوں کے یہ تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے جنت کے دروازوں کے یہ تالے کبھی بھی نہیں کھلیں گے. اور اسی طرح اب یہ بات بھی جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے. لا الہ الا اللہ.